My dear students, good morning to you. Finally, we have reached to the direct and indirect speech. If you want to learn good grammar, I suggest you just start from the beginning of my first video. That is, what is a sentence? Because I have sent you what is the sentence, kinds of sentences, noun, pronoun to be used as subject or object in every sentence. Then I came up to the tenses, which is the most integral part of English grammar. Then I made my videos on the series of active passive voice. So after the 12 number of tenses, my active passive voice videos have been completed. Today, I am on lesson number 4 of direct and indirect speech. Lesson number 1, lesson number 2 divided into episode 1 and 2, lesson number 3, and today lesson number 4. This is all direct and indirect speech topic is running up. So, in the first lesson of the direct and indirect speech, I taught you how to change the direct speech into direct speech. So all the rules have been taught you in that episode. Then I taught you that how to change the tenses of the reported speech while transforming the direct speech into indirect speech. That is in the lesson number 2, episode 1 and episode 2. Then I taught you the first category of the sentences, that is assertive sentences under the direct and indirect speech. And today I am on the lesson number 4 of the direct and indirect speech, and this is interrogative sentences. तो मेरे विद्यार्थियों, यदि आप पूरी इंग्लिश ग्रामर सीख रहे हो तो मेरी पहली वीडियो व्हाट इज अ सेंटेंस को देखना शुरू करो. उसके बाद मैंने काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस, देन नाउन, pronoun, number, gender, and afterwards the kinds of sentences. फिर मैंने 12 टेंसेस आपको करवाए. उन्हीं 12 टेंसेस के बेस पे हमने एक्टिव पैसिव वॉइस सीरीज कंप्लीट की और अब हम डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच पे पहुंच चुके हैं, जो कि मैं आपको लेसन नंबर 1, लेसन नंबर 2, एपिसोड 1, एपिसोड 2, lesson 3, assertive sentences to transform them into indirect speech. And today और आज हम लेसन नंबर 4 यानी कि 4 पे पहुंच चुके हैं. That is what we call it interrogative sentences. So what you will learn here, हम लोग क्या सीखेंगे यहाँ पर कि डायरेक्ट स्पीच में इंटेरोगेटिव सेंटेंस दिया होगा रिपोर्टेड स्पीच, उसको हम कैसे इनडायरेक्ट स्पीच में ट्रांसफॉर्म करेंगे. In the interrogative sentences, there are 2 categories of sentences. One, auxiliary verbs. Is, am, are, was, were, has, have, had, do, does, did, will, shall. तो ये जितने भी ऑक्सिलरीज हैं, ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस फ्रेम अप करती हैं. So we can frame up interrogative sentences by using these auxiliaries at the beginning of the sentence.
Then the second part is that form the interrogative sentences, that is WH family. Under the WH family, there are 9 words. Who, whom, what, when, where, when, why, whose, and what. So these are the 9 words that really makes the interrogative sentences. The major part which you need to remember, सबसे बड़ी बात जो कि आपको ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डायरेक्ट इनटू इनडायरेक्ट स्पीच में याद रखनी है, जब भी हम डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस इनडायरेक्ट स्पीच में ट्रांसफॉर्म करते हैं तो सभी पंक्चुएशन मार्क्स खत्म हो जाते हैं और वो स्टेटमेंट सेंटेंस यानी कि सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट हो जाता है. दैट इज व्हाट द इनडायरेक्ट स्पीच. 30 पेजेस का न्यूज़पेपर, सारा का सारा न्यूज़पेपर, उसमें जितनी भी स्टोरीज प्रिंटेड है वो सब इनडायरेक्ट स्पीच में लिखी होती है और यही रूल्स अप्लाई होते हैं. तो आपने अपने प्रोफेशन में when you people will get the job, you people will need to write letters, correspondence, leaflets, brochures. So there are many things which you need to compose. तो आपको जिंदगी में प्रोफेशन में बहुत कुछ लिखना होगा. तो इसलिए ग्रामर के सभी पार्ट्स आपके माइंड में होना बहुत ही अनिवार्य है. So all the parts of grammar must work in your mind very well. सभी ग्रामर सीरीज को वॉच कीजिए, आपकी ग्रामर बहुत अच्छी हो जाएगी. You take it granted from me. ये मेरा वादा है आपको. तो now let's begin the lesson 4 of direct or indirect speech, and it is divided into 2 parts. One is auxiliaries, helping verbs. Second is WH family. So here I begin with the first part, that is auxiliaries. Rules are written here. When in the direct speech said or said to is mentioned, you have to change said or said to into asked, or sometimes as the need may be inquired. तो आपने said और said to को asked में बदलना है और कभी कभी inquired. That depends upon the sense of the sentence. और अगर एक ही सेंटेंस में 2 क्वेश्चन हो तो उसे हम क्लब करके कंजंक्शन एंड यूज करेंगे और उस सेंटेंस के सेकंड सेंटेंस के ऊपर भी सेम रूल्स अप्लाई होंगे. तो इस प्रकार से आप 2 या 2 से अधिक सेंटेंसेस को भी कन्वर्ट करते हैं कंजंक्शन एंड लगाकर. और अगर फिर भी कुछ आगे पूछा है, क्वेश्चन पूछा है, सेकंड क्वेश्चन, तो आप एक सेंटेंस को कंप्लीट करके दूसरे सेंटेंस को शुरू करिए कंजंक्शन एंड से और उसे यूज कीजिए फर्दर आस्क्ड और फर्दर इंक्वायर्ड. देन ऑल द रूल्स naturally. What rules? How to change the cases? First person, second person, third person. Go back to my videos. Then change of the adverbs of time. Today, that day, tomorrow, the next day, hence, thence, now, then. Like that, the series is going on. So revision is necessary. So whenever you are caught up in any doubt, go to my previous videos. तो आप पहले भेजी गई वीडियो को जब रिपीट करेंगे तो डेफिनेटली सारे रूल्स आपके माइंड में रिट्राइव हो जाएंगे, बिकॉज इंग्लिश इज द लेंथीएस्ट लैंग्वेज इन द वर्ल्ड. और जितने रूल्स इंग्लिश लैंग्वेज के इतने रूल्स किसी और लैंग्वेज के
नहीं है तो ये आपको लाइफ लॉन्ग काम देगी प्रोफेशन में, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में, चाहे वो आईएएस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन हो, आईपीएस हो. So this language is going to be a panacea for your success. ये भाषा आपके लिए एक रामबाण है, तो इसका प्रयोग करना सीखिए. अब मैं पहले आपको ऑक्सिलरी वर्ब्स के एग्जाम्पल देकर समझाऊंगा, फिर मैं डब्ल्यूएच फैमिली की एग्जाम्पल देकर समझाऊंगा. रेस्ट बहुत डिटेल में मेरी इन दोनों की शीट्स अटैच है आफ्टर माय वीडियो. ऑल द रूल्स आर मेंशन्ड हियर. गो थ्रू बोथ द हैंडआउट्स. your perfection will be increased, right? So you will get the perfection. So first of all, I take the example of the auxiliary verbs. He said to me, do you play cricket? Sign of interrogation, inverted comma closed. He asked me, तो मैंने सेट टू को asked में बदल दिया. यूज कंजंक्शन if or whether, WHETHER. So I can take if or whether anything. So I'm taking if. He asked me if. अब आपने इस इंटरोगेटिव का कैटेगरी ऑफ टेंस देखना है. ये प्रेजेंट इंडेफिनिट इंटरोगेटिव है. इस डू से हमें कोई मतलब नहीं है, बिकॉज इट ओनली शोज इंटरोगेटिव जो हम कैटेगरी कर रहे हैं. हमारा मतलब इससे क्योंकि हमने इनडायरेक्ट स्पीच को अफर्मेटिव सेंटेंस और स्टेटमेंट सेंटेंस में बदलना है. तो डू यू प्ले क्रिकेट, तो यू को सब्जेक्ट लीजिए, यू को बदलिए सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग ऑफ मी, तो यू को मी में बदलेंगे तो आई. प्रेजेंट इंडेफिनिट चेंजेस इनटू past indefinite. If I played cricket, full stop. ये आपका सिंपल सेंटेंस हो गया इनडायरेक्ट स्पीच में. डायरेक्ट में पंक्चुएशन मार्क्स आएंगे, इनडायरेक्ट स्पीच में स्टेटमेंट सेंटेंस फुल स्टॉप आएगा, सभी पंक्चुएशन मार्क्स हट जाएंगे. So that is what the way to transform. I just quote you another example. Gita said to Radha, do you do my work? Sign of interrogation. अब ये do interrogative है प्रेजेंट इंडेफिनिट का, और ये do प्रिंसिपल वर्ब है. तो आपने प्रिंसिपल वर्ब को यूज करना है, इसको नहीं यूज करना जो इंटरोगेटिव शो कर रहा है. सो हमारे पास दो डू है, तो एक हेल्पिंग वर्ब है, दूसरा प्रिंसिपल वर्ब है. गीता asked राधा, एक यू को बदलोगे, राधा में फीमेल है, शी. Do, main verb, did, past indefinite. My को गीता में her, verb. So Gita asked Radha if she did her work. So this is a complete sentence. ऐसे ही बहुत सारे sentences है. Is, am, are, was, were, do, does, did, has, have, shall, will. तो मैंने दो एग्जाम्पल यहाँ बनाए हैं. So ये हमारे इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के एग्जांपल हो गए, और मैंने अपनी शीट में इसी टाइप के बहुत एग्जांपल दे रखे हैं. इसी वे में इनको पढ़ना, द वे आई हैव टॉट यू, तो वो भी क्लैरिटी हो जाएगी. सो ऑल द एग्जांपल्स आर मेंशन्ड इन माय हैंडआउट्स. नाउ आई स्विच ओवर टू द डब्ल्यूएच फैमिली. सिमिलर वे, बट डब्ल्यूएच फैमिली को आपने स्टेटमेंट सेंटेंस में कन्वर्ट करना होता है इनडायरेक्ट स्पीच में.
That is what the most necessary part. यहां भी वही है, said or said to go, asked और inquired में चेंज करना है, no conjunction इसमें और auxiliaries में if और whether आप conjunction यूज करते थे, यहां पर इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर कोई conjunction नहीं यूज करना, माइंड it. Then convert the sentence into indirect speech. Same rules है, only conjunction नहीं आएगा. Mohan said, comma inverted comma begin, what do you want? Mohan asked, what? अब यू का यहां ऑब्जेक्ट नहीं है, सेकंड पर्सन यू ले लीजिए या कोई भी ऑब्जेक्ट ले लीजिए. यू वांटेड, सो प्रेजेंट इंडेफिनिट चेंजेस इनटू पास्ट इंडेफिनिट और फुल स्टॉप लगाना है, स्टेटमेंट सेंटेंस हो गया. व्हाट यू वांटेड, व्हाट होते हुए भी ये असर्टिव सेंटेंस है, अफर्मेटिव है, स्टेटमेंट सेंटेंस. रवि सेड, why do you abuse me? Ravi asked, why I abused him. तो ये भी आपका डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बन गया. अब जब तक आप बहुत सारे एग्जाम्पल स्टडी नहीं करोगे जो मेरे हैंड आउट में दिए हुए, तब तक उतनी क्लैरिटी नहीं है. तो रीड ऑल द रूल्स फ्रॉम द हैंडआउट्स एंड लिसन द होल लेक्चर, द होल थिंग विल गेट क्लियर टू यू. बट एक बात याद रखना, डब्ल्यूएच फैमिली में नो कंजंक्शन इज टू बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ इन्वर्टेड कॉमा. इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर कोई भी कंजंक्शन डब्ल्यूएच फैमिली में नहीं आता. तो आप मेरे हैंडआउट को पढ़ेंगे, मोर एंड मोर इट विल गेट क्लियर टू यू. वो मैं हैंडआउट आफ्टर द वीडियो नेक्स्ट इसीलिए कर रहा हूं कि इन केस यू हैव एनी डाउट यू कैन इंस्टेंटली रीड ऑल द रूल्स दिए. नंबर 1, फिर भी प्रॉब्लम आए तो पिछली वीडियोस आपको देखनी जरूर है, वहां पर सारे रूल्स क्लियर किए. सो हियर माय lesson number 4 of the direct and indirect speech is concluded. Now my next video, that will be lesson number 5 of the direct and indirect speech, will be followed after this video. So keep on watching and keep on learning grammar. I'm HK Batra. To learn the complete grammar, please subscribe my channel and press the icon bell so that my all videos can reach to you very well. Right? Thank you very much for your cooperation and learning English language. Bye-bye.